Hello friends. So previous video में we have completed with basis of apportionment जो thing है we have completed that and उसी के basis पे we are going to solve this question, particular question which has been appeared in November 2019 exam for 10 marks. So let's see how the sales ratio, time ratio is calculated and how further calculations are done, and those are the things from the things we have learnt yesterday. So let's start. This is question number 5B. So this question says that partners of CNG decided, that means before this was a partnership firm, to convert their existing partnership business into a private limited, CG Trading Private Limited, with effect from 1/7/2018. Right? तो ये लोग partnership firm से they are converting their partnership into company. So let's see how this particular thing will be solved. So now the books of accounts starts from 1st April 2018 is the year given here, so I am taking 2018. They are converting it on 1st July 2018 and books are closed on 31st March 2019. See, they are saying here the same books of accounts were continued by the company which are closed on 31st/3/2019 और इनका जो summarized P&L है which is given on 31st March 2019 and we have to distribute the items given in the profit and loss account to be distributed in pre and post incorporation में हमको इसको distribute करना है, right? So now this period is from 1st April to 30th June. So April, May, June, these are 3 months and यहाँ पे from 1st July to 31st March कितना हो गया? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च. These are how many months? 9 months, right? तो this is my pre period, this is my post period. तो the ratio seems to be 3:9 and to simplify it further this comes to 1:3. So in short, my time ratio is 1:3, right? My time ratio is 1:3. We can verify this answers later on when we complete solving this question, right? Now this is the P&L account given as on 31st March 2019. This is given. So अभी हमको क्या करना है? पार्टनरशिप एंड कंपनी दैट इज प्री एंड पोस्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है. नाउ यहाँ पे थिंग्स क्या क्या दिए हुए? टर्नओवर द बेसिस वुड बी ऑब्वियसली सेल्स. वी आर येट टू कैलकुलेट द सेल्स रेशियो. तो हम लोग अभी वो नीचे जो भी एडजस्टमेंट्स दी हुई रहेगी वहां से विल बी कैलकुलेटिंग आवर सेल्स रेशियो. सो दिस एडिशनल इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड हियर. नाउ दिस सेज एवरेज मंथली सेल्स doubled from 1/7/2018. Now this is 1st April, this is 1st July and this is 31st March. What it says, ये वाला जो पीरियड है ना, इस पीरियड में द सेल्स इज डबल्ड. मतलब क्या हुआ कि जैसे ही ये वाली जो पार्टनरशिप फर्म है जैसे ही कंपनी में कन्वर्ट हुई वक्त के साथ सेल्स इज डबल्ड. तो हाउ डू यू इंटरप्रेट दिस एज? Assume this as, assume पहले in the pre period assume the sales as X, मतलब X, we don't know what is the sales, and then it doubled in the post period. तो यहाँ पे sales क्या हो गया? It doubled. So X का double would be 2X. वक्त के साथ बदल गया, right? My time ratio was what? 1:3. तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे. X into 1 is how much? Therefore, X into 1 is 1X. So we can say this as X only. And 2X into 3 would be 3 2s are 6X. Therefore, my sales ratio comes to 1X is to 6X. That is 1:6. So this is my sales ratio. Right? वक्त के साथ the sales has been doubled. That's why I have multiplied the thing with time ratio, right? So this is my sales ratio. So maybe the important thing to calculate is time ratio and sales ratio.
एंड द अदर थिंग्स डिपेंड्स अपॉन, मतलब जो भी लाइन आइटम्स हमको पी एंड एल अकाउंट में दिए हुए हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन योर सेल्स रेशियो एंड योर टाइम रेशियो. तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स is solved here only. Now you have to just interpret जो भी वहां पे line items दिए हुए हैं, salaries, bad debts, commission, etc. things would be distributed on the sales ratio basis or on time ratio basis. And now number 2, it says all the investments sold on 31st/5/2018. See now इनका जो shifting हुआ from partnership to company, this itself happened on 1st July 2018. तो ये वाला जो पीरियड है 31st मई, दिस इज ऑफ कोर्स ऑफ प्री पीरियड. तो जितना भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ भी होगा, दिया हुआ होगा, दैट वुड गो इन टू माई प्री वाला थिंग. दैट इज नथिंग टू डू विथ पोस्ट थिंग. तो वी हैव टू जस्ट रिमेंबर कि इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ भी अगर दिया हुआ रहेगा, लाइक दिस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स एंड दूसरा लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सो दिस टू थिंग्स वुड बी गॉन इन प्री पीरियड ओनली. This is a little tricky adjustment and very interesting also. I think the most of the marks would be allotted to the next adjustment only. It says average monthly salaries doubled from 1/10/2018. So this is my 1st April. This is my 1st July. यहाँ पर date given is 1/10/2018. 1 October 2018. This is 18. This is 18. And the books are closed on 31st March 19. So from 1st April to 30th June, April, May, June, these are 3 months. यहाँ से यहाँ वाला period from 1st July to 1st October, July, August, September, right? It is also 3 months. और इसके आगे फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च, हाउ मेनी? 6 months. सो 6 months. ये एक ब्लॉक है, दिस इज वन ब्लॉक एंड दिस इज वन ब्लॉक. सो दे से दैट फ्रॉम दिस पीरियड इट इज डबल्ड एंड फॉर दिस पीरियड assume this as x and assume this as 2x. जैसे हमने अभी सेल्स का किया था ना कि इट डबल्ड फ्रॉम सो एंड सो पीरियड, सो इट इज डबल्ड फ्रॉम 1st October. तो यहाँ पे अगर हम लोग बाइफर्केशन देखें, दिस बाइफर्केशन, सो नाउ दिस प्री पीरियड वुड बी हाउ मच? 3 months into x. This would be 3x. So now this period, पोस्ट पीरियड का कैसे सॉल्व करेंगे? नाउ सी दिस 3 months इज x ओनली. ये है ना पूरा पीरियड, दिस होल पीरियड इज x ओनली. सो 3 months into x. सो राइट डाउन 3 months into x. तो यहाँ पे एक पोर्शन हो गया 3x. दूसरा वुड बी हाउ मच? 6 months into 2x. सी दिस होल पीरियड इज माई 2x. इट डबल्ड, राइट? इट डबल्ड फ्रॉम 1st October. So 6 months into 2x. Write down 6 months into 2x. So that would become 6 2s are 12x. Right? तो अगर इसका एडिशन करेंगे 3x plus 12x, that becomes 15x. Therefore ये जो salaries that would be distributed upon 3x is to 15x. प्री एंड पोस्ट. तो इन शॉर्ट रेशो क्या हो गया? 1:5. दिस इज द इंपॉर्टेंट रेशो विच इज सॉल्व्ड इन दिस क्वेश्चन, राइट? यू कैन टेक अ लुक और कॉपी डाउन इनटू योर कॉपी so that you can remember this later on also. So how do we solve this? ये 3 parts में this is solved. See, pre period, ये ना तो पूरा प्री का है ना पोस्ट का है, बीच में there is also one more gap. ये जो 3 months वाला है ना, that again thing. So that is a good and different adjustment. So ये देखो, ये 3 months is linked to this x, this 3 months is also linked to this x, and this 6 months is linked to this 2x, right? So this is the very important adjustment. So I guess most of the marks would be allotted to this single adjustment, right? So 1:5 is this ratio. The other adjustments are easy now.
what it says, the company occupied additional space from 1/7/2018 for the rent of 20,000. हो सकता है कि मे बी दे हैव शिफ्टेड टू कंपनी, तो दैट कंपनी में ज्यादा काम बढ़ने के वजह से might have needed the additional space and they had to pay the additional rent of 20,000. So the additional rent started from 1st July to 31st March. That means these are 9 months. 9 months into per month it is saying rupees 20,000. So that comes to 1,80,000 rupees. So the additional rent is 1,80,000. इसका adjustment कैसा करेंगे? Let's see. See now the total rent given. These numbers are given in lakhs. So the total rent given is 5,50,000. Total rent given is 5,50,000. Additional rent from 1st July. हमने अभी कैलकुलेट किया, that comes to 1,80,000. Balance rent comes to 3,70,000. See on this number line, pre-period, post-period. 1,80,000 तो प्योरली ये वाले पीरियड का है, पोस्ट पीरियड का, क्योंकि इन्होंने बोल ही दिया दैट इज फ्रॉम 1st जुलाई. वो एडिशनल रेंट हो गया. वी हैव सीन ना 20,000 इंटू 9 मंथ्स, तो 1,80,000 तो पूरा पोस्ट में जाएगा. एंड दिस 3,70,000 would be distributed upon time basis in pre and post. And my time ratio is 1:3. Distribute करेंगे तो this comes to 92,500 rupees. 92,500. और पोस्ट में कितना जाएगा? पोस्ट में जाएगा रुपीज 2,77,500. तो पोस्ट में टोटल कितना जाएगा? 1,80,000 प्लस 2,77,500, दैट कम्स टू 4,57,500. एंड प्री में वुड बी 92,500. सो दिस इज द एडजस्टमेंट ऑफ रेंट वाला थिंग, राइट? दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट. बैड डेट्स रिकवर्ड अमाउंटिंग टू रुपीज 60,000 फॉर सेल्स मेड इन 16-17. पहले का कुछ बैड डेट होगा विच इज नाउ रिकवर्ड. सो रिकवर्ड में क्या हुआ? ये 16-17 पीरियड इज प्री पीरियड ओनली. दिस इज द पीरियड बिफोर 1st जुलाई 2018. तो ये जो रिकवरी रहेगा ये पूरा प्री पीरियड में ही जाएगा, राइट? तो ये वाला एडजस्टमेंट में कुछ खास करने लायक नहीं है, तो डायरेक्टली हम इसको P&L अकाउंट में देख लेंगे. एंड इट सेज ऑडिट फीस पर्टेन्स टू कंपनी. तो अभी ये पूरा ये लोग क्या बोल रहे हैं कि पार्टनरशिप फॉर्म अभी कंपनी में कन्वर्ट हो रहा है. खुद ही बोल दे रहे हैं यहाँ पे कि जो ऑडिट फीस है इट बिलोंग्स टू कंपनी. सो दिस वुड गो इन पोस्ट पीरियड. सो सारे आइटम्स को अभी लाइन बाय लाइन एक बार चेक कर लेते हैं. हमने देख लिया टर्नओवर डिपेंड्स अपॉन सेल. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स ये प्री पीरियड में जाएगा. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगेन दिस डिपेंड्स अपॉन सेल्स रेशियो. सेल्स रेशियो हमने देखा 1:6, 1:6. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस डिपेंड्स अपॉन सेल्स, कल देखा था हमने, दैट इज ऑल्सो 1:6. सेल्स ऑन कमीशन बाय डिफॉल्ट सेल्स, दैट इज 1:6. सैलरीज का हमने अभी वर्किंग नोट देखा, राइट? सैलरीज का आया हमारा 1:5 रेशियो, आई गेस, या 1:5 सैलरीज. मैनेजिंग डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, कल हमने देखा था कि मैनेजर कब अपॉइंट होता है? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन. तो ये पूरा का पूरा कहाँ जाएगा? पोस्ट पीरियड में जाएगा. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, वी हैव सीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स जो भी लिस्ट कब होते हैं? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन. सो ये भी पोस्ट में जाएगा. रेंट हम लोगों ने अभी एडजस्टमेंट देख लिया इसका. सो दिस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन वर्किंग नोट. बैड डेट दिस डिपेंड्स अपॉन सेल्स विच इज 1:6. बट इन दिस केस यहाँ पे नीचे हमने एक एडजस्टमेंट देखा, तो पहले एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट. सो हम लोग वो देखेंगे P&L में हाउ दैट एडजस्टमेंट इज डन. अंडर राइटिंग कमीशन, कल हमने इसका भी कॉन्सेप्ट देखा. अगर नॉर्मल पब्लिक शेयर्स को सब्सक्राइब नहीं करती है, मतलब उसका अगर अंडर सब्सक्रिप्शन होता है, तो दोज अंडर राइटर्स सब्सक्राइब दोज शेयर्स. तो ये भी पोस्ट पीरियड में जाएगा. ऑडिट फीस
उन्होंने खुद ही बोल दिया कि pertains to company, so this would go in post period only. लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने क्या किया, पहले ही प्री पीरियड में सेल कर दिया, तो दैट बिलोंग्स टू प्री पीरियड. एंड डेप्रिसिएशन, दिस डिपेंड्स अपॉन टाइम रेशियो, राइट, एंड द टाइम रेशियो इज 1:3, राइट. देयर आर सम एडजस्टमेंट विच इज ऑब्वियसली थोड़ा सा ट्रिकी है, विच इज जो हमने अभी सैलरीज वाला सॉल्व किया, राइट. सो इट इज लिटिल ट्रिकी. बाकी टाइम एंड सेल्स रेशियो इज ईजी. सो आई गेस इंटर लेवल पे 10 marks for this type of question is a very great deal, so you can grab those 10 marks, right. And this is the exam question, this is the suggested answer November 19 question. अभी यहाँ पे मैंने सब कुछ लिख दिया है, सेल्स, प्री, पोस्ट, जहाँ पे भी जाएगा. लेट्स गो टू आंसर. आंसर में आप देखो, सेल्स 1:6 सेल्स रेशियो, इंटरेस्ट प्री में जाएगा, बैड डेट्स रिकवर्ड. मैंने बोला था ना, जो बैड डेट्स रिकवरी उन्होंने बोला 60,000 का रिकवरी हुआ, राइट. तो वो 60,000 उन्होंने प्री में डाला. बट इसका एक और एडजस्टमेंट कैसे किया है, दे हैव इंक्रीज दोज बैड डेट्स. पहले 1.15 P&L में ऑलरेडी दिया हुआ है, 1.6 पहले इसमें ऐड किया. दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सेल्स बेसिस, राइट. बैड डेट्स तो सेल्स रेशियो पे ही डिपेंड करता है, तो बैड डेट्स दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड, और जो रिकवरी हुआ है वो ऊपर इन्होंने इनकम साइड में डाल दिया है 0.60. तो दिस इज हाउ दे हैव सेटल्ड दिस अमाउंट. COGS सेल्स रेशियो, एडवर्टाइजमेंट सेल्स रेशियो, सेल्स कमीशन सेल्स रेशियो, सैलरी 1:5. वर्किंग नोट हमने देखा, इसका वर्किंग नोट हमारा भी आया है 1:5. मैनेजिंग डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन पोस्ट पीरियड, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पोस्ट पीरियड, वी हैव सीन द लॉजिक्स. फिर रेंट वर्किंग नोट नंबर 4. सी हमारा भी आया था 5.5 इन्होंने दिया, हमारा क्या आया था, कुछ ऐसा आया था ना, 92,500 is to 92,500 and 457,500 457,500. तो इन्होंने अभी ये लैक्स में लिखा हुआ है, तो इसको राउंड ऑफ कर दिया 0.93 एंड 4.57, राइट. अंडर राइटिंग कमीशन पोस्ट पीरियड, वी हैव सीन दिस. ऑडिट फीस क्वेश्चन में ही बोला है पोस्ट पीरियड. लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि दिस बिलोंग्स टू प्री पीरियड, मे में इन्होंने सेल कर दिया. एंड डेप्रिसिएशन, दिस डिपेंड्स अपॉन टाइम रेशियो, एंड द टाइम रेशियो इज 1:3. अभी इसको क्या करना है, proportionately we have to divide all these things into pre incorporation period and post incorporation period. जैसे ही आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो you will get net profit or loss which is total इतना है, and pre period का 16.16 and post period is 58.37. In short, if we see this sales ratio, we got this 1:6. Time ratio we got 1:3. Apportionment of salary हमने देखा यहाँ 3x and then this 3x into 12x, this 15x, and we have got this 1:5, ये हमने देखा. Then rent का apportionment किया, total rent given is this much, post period का this much, and then distributed to be in pre and post is this much. हमने ये वाला adjustment भी पूरा देखा, and this total is this much. तो right, तो directly इन्होंने भी ऐसा solve किया है, and you can as well solve the way I have solved. So you can take the screenshot of this. This is the time ratio we have calculated. Sales ratio. Then this portion is salaries wala part, salaries. And this is my rent wala adjustment, and bad debts ka adjustment we have seen, right? So let me know into the comment section, if this was helpful to you. Thank you so much, guys. If you like this video, please subscribe and do not forget to hit the bell icon button. Thank you.